नाइन्थ क्लास में, उनमें से कोई भी चैप्टर आपका 10th में रिपीट नहीं होगा definitely, but it doesn't mean that you're not going to study them, because if you're going to take physics for your higher classes, then all these concepts are going to be helpful for you, right? So let us start the chapter, work and energy. You must have heard of both of the terms earlier. आपने ये दोनों ही टर्म्स को पहले भी सुना होगा कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है. Now when we are studying these concepts in science, ठीक है, जब इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनना, whenever we are studying the concept of work in science, it is not related to the usual work which you can think of. ठीक है, आप यूजुअली जिस चीज को काम समझते हो, whatever work you can think of. मैम आपका वॉइस, मैम आपका माइक ऑफ हो गया. मैम आप म्यूट हो गई. Okay, we are going to start this chapter, work and energy. So I was talking about the concept of work, right? So in this chapter, we are going to study about the concept of work and how energy and power are two different concepts which are related to work, right? ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एनर्जी और पावर ये दोनों वर्क से कैसे रिलेटेड हैं. इसके अलावा we know this very well that whatever is being done by us or by any of the animal or anything around you that requires a lot of energy, whatever life processes we are having, that requires energy, and energy is related to work. ठीक है, तो इसका मतलब कि वर्क एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपके, ये कह सकते हैं कि जिस चीज को आप वर्क समझते हो, एक्चुअली दैट इज नॉट वर्क ऑलवेज. एंड समटाइम्स जिन चीजों को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि हाँ दिस इज कैन नॉट बी वर्क, ये काम नहीं हो सकता है, दैट कैन बी काउंटेड एज वर्क. So that is why I'm saying in science the concept of work is entirely different from the concept of your still known knowledge. ठीक है, अब okay, so I was talking about the concept of work, not much work in spite of working hard. This is a very nice line which I found very interesting. कि बहुत सारा हार्ड वर्क करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि हम इसे वर्क ना कहें. बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद, मेहनत करने के बाद भी इट इज पॉसिबल दैट वी आर सेइंग दैट दैट इज नॉट वर्क. हाउ? नाउ वर्क एंड एनर्जी रिलेशन, इट इज क्वाइट क्लियर. आप इसको अपने आसपास जो भी डिवाइसेस है लाइक मशीन्स, उनके थ्रू भी आप समझ सकते हो. यू ऑलवेज नीड टू पुट सम पेट्रोल एंड डीजल. जैसे आपके व्हीकल्स है, उसमें आपको पेट्रोल डीजल डालना पड़ता है. ठीक है, दैट इज प्रोवाइडिंग अ काइंड ऑफ एनर्जी जिससे कि वो मशीन है, वो व्हीकल्स है, वो काम करते हैं. ऐसे ही इन योर बॉडी यू आर ऑल्सो पुटिंग सो मेनी सब्सटेंसेस. आप खाना खाते हो, ठीक है, केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जो कि आपको एनर्जी देते हैं, और उस एनर्जी से फिर आप कोई भी काम कर पाते हैं. ठीक है, सो एनर्जी और वर्क दे आर इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. और इसी से रिलेट करता हुआ एक और टॉपिक आता है पावर, वो हम बहुत ही डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ लेट अस कम टू दिस लाइन, नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड. हाउ? So this is very nice example given to you. Assume you are preparing for your examination. ठीक है, आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, यू आर ड्राइंग डायग्राम्स, फ्लोइंग चार्ट, आपने बहुत सारे थॉट्स पढ़े हैं, समझे, उन सबको आप रीअरेंज कर रहे हो, लिख रहे हो. यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, क्लासेस अटेंड कर रहे हो, यू आर लिसनिंग टू मी, राइट, you are writing your own points, so you are actually working very hard. Definitely, you are literally keep awaking yourself during the nights. You are getting up in the morning, then you're studying again. So ultimately, I can say that you have worked very, very hard for your examination. But
from the point of view of science point of view से we cannot say that you have done much work, हम उसको काम नहीं कहेंगे, right? This is one point. Second point, you have done, literally assume you are trying to push a huge rock, you have literally pushed it too hard, आप उसको धक्का मारने की कोशिश कर रहे हो, you are trying to move it from its original position, right? But it is not possible for you. हाँ, इस प्रोसेस में आप बहुत ज़्यादा थक गए, probably you are getting very tired, you are not able to do any other work now, you have definitely done very hard work, आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन वो चेंज आया नहीं, that is a different thing. So इन दोनों ही पॉइंट्स में आपने क्या देखा कि इन दोनों ही पॉइंट्स में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, लेकिन फिर भी in terms of science we cannot say that this is your work. Now you must be wondering that how is this possible? इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी हम क्यों कह सकते हैं कि ये वर्क डन नहीं है? तो आपको अब एग्जांपल देती हूँ कि वर्क डन होता कब है. ठीक है, there are few examples of वर्क डन. उससे शायद आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए कि हम इसको वर्क डन में काउंट क्यों नहीं करते हैं. So if you are climbing a tree, you are climbing a tree or staircase, this is your first example. You can have second example that uh, you are moving with a load, moving or throwing a ball. ये सारे आपके examples हो सकते हैं. Can you tell me clearly what is the difference in these examples? आपको कुछ difference समझ आ रहा है इन सारे examples में? मैम इसमें एनर्जी ज्यादा यूज होती है. कौन से नीचे वाले केस में? यस मैम. ओके, ठीक है. हम ये भी तो कह सकते हैं कि इस केस में देयर इज एक्चुअल मूवमेंट, यहाँ पर कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है. मान लो आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू आर जस्ट सिटिंग एट वन प्लेस, एक जगह पर बैठ के आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो. आपने हार्ड वर्क तो किया है, लेकिन वहां पर वर्क को काउंट ही नहीं किया गया. इस केस में आपने किया है, यू हैव लिटरली क्लाइंब्ड अप अ ट्री, आपने एक पेड़ पर पूरा चढ़ा है आपने, उसके बाद यू आर लिटरली क्लाइंबिंग ऑन अ स्टेयरकेस, सीढ़ियों पर आप चढ़ रहे हो. तो इस केस में यू कैन सी there is some distance you are covering, right? This is the first difference you can find out. आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन तो बैठ के भी कर सकते हो, और ये जो क्लाइंबिंग ऑफ ट्री एंड स्टेयरकेस है, this in this case particularly you are actually covering some distance. So in terms of science, the concept of work is that there are some particular conditions to be work to done. ठीक है, हर एक work done के पीछे there is some condition which is lying. Until unless that condition is not fulfilled, you cannot say that there is some work which is done. So what are the conditions? Let us study about that. इससे पहले this another example I can give you. Assume there is a pebble, एक stone है जो कि गिरा हुआ है, that is lying on a surface, और you are आपने कोई ट्रॉली है, you are pushing some trolley so that that trolley has it traveled some distance, right? These are few examples. Now if you carefully find out, if you carefully observe all the examples, so you will study that there are few conditions which is necessary to satisfy that work has been done. यहाँ से हमें क्या समझ आ सकता है कि there must be some conditions which can fulfill the requirement of your work done. Conditions need to be satisfied, for work to be done. So in science or in scientific concept, there must be few conditions which need to be satisfied. अगर वो conditions fulfill होती हैं,
If all these conditions are fulfilled and satisfied, only then you say that work is done. It means कि इसके अलावा जितने भी केसेस हैं जहाँ पर आपकी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी, उन सबको हम एक्चुअली वर्क डन में काउंट नहीं करते हैं. बट इट डजंट मीन कि वर्क डन नहीं हुआ है, होता है. Either you do not study them for your level क्योंकि अभी आप 9th क्लास में हो, probably you will study that later in your higher grades. तब शायद आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है कि हम उसको साइंस में क्यों नहीं काउंट करते हैं. लेकिन फॉर नाउ यू कैन सिंपली रिमेंबर that there are two conditions which need to be satisfied. Only then we can say that work is done. First condition is a force. The first condition is a force should be act on an object. This is the first condition. There must be some amount of force which you are acting on that object. हमेशा कुछ ना कुछ amount में force हमेशा होना चाहिए. Until unless force is not there, you cannot say that work is done. So force की presence हमेशा होनी चाहिए. What is the second condition? आपने फोर्स लगाया, ये फर्स्ट कंडीशन है. उस फोर्स लगाने से द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड. दिस इज योर सेकंड वेरी एसेंशियल कंडीशन. ठीक है, कि जैसे आपने फोर्स लगाया है उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस होना चाहिए. दैट हैज टू बी, इट इज मस्ट दैट द ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्प्लेस्ड. So if only both the conditions are satisfied and completely fulfilled by any act, आपने कुछ भी काम किया है, कुछ भी प्रोसेस किया है, उसमें अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, तभी हम कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ है. अदरवाइज वी कैन नॉट से दैट वर्क इज बीन डन. नाउ यू कैन कंपेयर दीज टू. अब आप फिर से इनको कंपेयर करके समझ सकते हो कि व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. अगर आप एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने कोई फोर्स नहीं लगाया है डेफिनेटली, और आपका कोई डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हुआ है. आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस नहीं किया है, कोई फोर्स नहीं लगाया है. आप ये भी नहीं कह सकते हो कि कम्प्लीटली जीरो वर्क डन है. नहीं, वर्क डन है लेकिन बहुत कम अमाउंट में. हार्ड वर्क आपने किया है मेंटली, लेकिन फिजिकली आपका हार्ड वर्क बहुत ही कम है. कैसे? आपने नोटबुक को इधर से इधर रखा होगा, अपने पेपर को टर्न किया होगा. ठीक है, ये भी तो एक डिस्प्लेसमेंट ही है, पेपर को टर्न करना. आपने अपने मसल्स का यूज किया है, पेन से आप लिख रहे हो, सो यू आर यूजिंग योर मसल्स अगेन. सो वर्क तो हुआ है लेकिन वो बहुत ही कम अमाउंट में, इसीलिए मैंने लिखा है नॉट मच वर्क. ऐसे ही अगर आप एक बहुत ही बड़े पत्थर को अगर पुश करने की कोशिश कर रहे हो, इस केस में आपने फोर्स तो बहुत ज्यादा अप्लाई कर दिया. ठीक है, यू हैव अप्लाइड अ लॉट ऑफ फोर्स, बट इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, क्योंकि वो रॉक अपनी जगह से डिस्प्लेस ही नहीं हो पाया, उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हुई है. तो अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तब भी हम उसे वर्क डन नहीं कह सकते. तो ये वाला केस आपका वर्क डन नहीं है, क्योंकि इस केस में फोर्स तो अप्लाई आपने किया है, यू अप्लाइड अ लॉट ऑफ फोर्स, बट द ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्प्लेस्ड. नाउ इन दिस केस यू कैन सी इफ यू आर क्लाइंबिंग अ ट्री. ठीक है, सो यू हैव कवर्ड सम डिस्टेंस एंड डेफिनेटली यू आर यूजिंग योर मसल्स. जब आपने अगर आप स्टेयर केस से या ट्री पे यू आर क्लाइंबिंग, सो यू हैव कवर्ड अ डिस्टेंस, ट्री की लेंथ आपने कवर की है, तो वो आपका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट. और आपने अपने मसल्स का यूज किया है, दैट इज द फोर्स. ऐसे ही इफ यू आर थ्रोइंग अ बॉल, तो you what you are doing whenever you throw a ball, you are applying some force on that ball, so the ball will definitely reach to certain distance. तो इस केस में दोनों ही पोजीशंस, दोनों ही कंडीशंस सेटिस्फाई हो गई हैं. आपने फोर्स अप्लाई किया है बॉल के ऊपर, और उस फोर्स को अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस भी हुआ है. ऑब्जेक्ट क्या था? जो आपके हाथ में बॉल थी वो, तो वो बॉल आपकी डिस्प्लेस भी हुई है. ठीक है, ऐसे ही दिस लास्ट एग्जांपल, इफ यू आर पुशिंग सम ट्रॉली, कोई ट्रॉली है, छोटा सा बैग है या कुछ भी है जिसको आप पुश कर रहे हो, सो यू आर अप्लाइंग फोर्स. अगर उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है आपके फोर्स लगाने से, तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी है, तो हम कह सकते हैं कि इस केस में वर्क डन हुआ है. इज इट क्लियर अप टिल हियर? यहाँ तक सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस मैम. यस मैम. मैम. ठीक है, सो
ये हो सकता है कि आपको कभी कभी लगे कि हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा काम किया है, लेकिन जब भी हम साइंस की बात करते हैं, सो साइंटिफिकली इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल दैट यू हैव डन दैट मच वर्क। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना फोर्स लगाया है और कितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जितना ज्यादा फोर्स आपने लगाया, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसके बेसिस पे हम साइंस में कहते हैं कि आपने कितना ज्यादा काम किया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आता है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। सो इफ you assume that force is denoted by capital F, this is the force which is acting on any object, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको आप कैपिटल एफ मान सकते हो। और जैसे ही आपने फोर्स लगाया है, ये ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है, अपनी पोजीशन से चेंज हुआ है। सो लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स अप्लाई करने के बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्मॉल एस। ये आप पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हो कि स्मॉल s is actually denoting the distance. So if F is the force acting on the object, S is the displacement or the distance which is traveled by the object, then work done is nothing but the product of force and displacement. So you can simply write product, product का मतलब multiplication, force into displacement. This is the formula to find work done. You can denote this work done by W. Force is denoted by capital F and displacement is denoted by small s. So this is the simplest formula at how do you find the work done by any object. ठीक है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं. Assume you have a table over here. ठीक है, एक आपकी टेबल है यहाँ पर and there is a book which is lying on this table. This is the book. What you have done, you have applied force in this direction. आपने force apply किया इस तरफ. Definitely it will move to certain distance. पहले initially ये आपकी बुक थी, जैसे ही आपने इसको पुश किया, अब यहाँ पर आपकी बुक यहाँ पहुंच गई है. मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका s था, ठीक है, और आपने जो फोर्स यहाँ से लगाया है दैट इज F. तो इस केस में आप वर्क डन को सिंपली लिख सकते हो F क्रॉस S. और अगर मैं इसकी वैल्यू दे दूं कि मान लो आपने जो फोर्स लगाया है दैट इज सम 5 यूनिट, आप मुझे बताओगे, और जितने डिस्टेंस पे ये ट्रैवल की है दैट इज ओनली 2. सो वर्क डन इज नथिंग बट 5 into 2 which is 10. Now tell me the units of force. What is the unit of force? मैम न्यूटन. Newton. Very good. You denoted by capital N, that is Newton. What is the unit of displacement मीटर or पर सेकंड. distance? मीटर पर सेकंड. हाँ, velocity नहीं पूछा है, distance पूछा है. मैम Distance. किलोमीटर. ये distance कितना होगा? मीटर. Distance और displacement सेम ही तो है. और डिस्प्लेसमेंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप जब फोर्स लगाते हो तो ऐसा नहीं है कि बुक किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी. वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही मूव करेगी, स्पेशली वहां पर जहां आपने फोर्स लगाया है. ऐसा तो नहीं है कि बुक किसी थर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग गई, क्योंकि वो एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करती है, इसलिए मैंने उसको डिस्प्लेसमेंट लिखा है. क्योंकि डिफरेंस तो यही है. डिफरेंस क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, कि इस केस में हमारे पास डायरेक्शन होती है और अगर हम सिंपल डिस्टेंस की बात करें तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है. अब क्योंकि आपकी बुक जो है दैट इज मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, इसीलिए आई हैव टेकन दिस एज डिस्प्लेसमेंट. सो द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट मीटर. इतने मीटर तक ही तो आपने की बुक ने ट्रैवल किया है, और जब आप टाइम ले आओगे तो वो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी. बट वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस. सो 5 न्यूटन into 2 मीटर. So what should be the unit of work done? यहाँ पर क्या होनी चाहिए work done की unit? न्यूटन मीटर. 10 nm. Newton meter. Very good. न्यूटन मीटर. Nm.
Newton meter. So the unit of work done. Please remember this is not the SI unit, क्योंकि हर एक जो भी आपका फिजिकल या नेचुरल फिनोमेना या क्वांटिटी होती है उसका एक अलग यूनिट भी होती है, उस यूनिट के बारे में भी हम पढ़ेंगे बाय फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आपकी जो यूनिट आई है दैट इज न्यूटन मीटर। दिस यूनिट हैज कम फ्रॉम द फॉर्मूला व्हिच इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो नाउ यू कैन क्लियरली सी, इस चीज को आप क्लियरली समझ सकते हो that force is applied on any book. The book is displaced by some distance. Now the multiplication of these two will give you work done. In case I am asking, this is very important कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 न्यूटन मीटर कितना होगा, what do you understand by 1 न्यूटन मीटर? When is this possible? 1 न्यूटन मीटर वर्क डन, इसका क्या मतलब हुआ? Work done is force into displacement. This should be 1. ठीक है, this should be 1. Is there any possibility which gives you 1 work done? मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना रखना चाहिए कि ये 1 आ जाए? 1 into 1. 1 into 1। और कोई बताओ, और कोई पॉसिबिलिटी है? Is there any other possibility? No, No, ma'am. there is no other possibility except that your force is 1 Newton and displacement is 1 meter. So if the question is asking that define work done 1 न्यूटन मीटर वर्क डन, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि आप इस क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करोगे, तो आप क्या लिखोगे? व्हेन फोर्स इज 1 न्यूटन and the displacement is 1 meter, right? When the force is 1 Newton and the displacement is 1 meter, then we say that work done is 1 Newton meter. 1 न्यूटन मीटर का वर्क डन कब होगा? जब आपका फोर्स भी 1 न्यूटन हो और डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर हो। और इसी 1 न्यूटन मीटर को हम लिख सकते हैं जूल। ठीक है, दिस इज अनदर SI यूनिट ऑफ वर्क डन व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विल सजेस्ट यू कि जब भी आप क्वेश्चंस करें, न्यूमेरिकल्स करें, so instead of writing Newton meter you should always prefer this unit. So SI unit of W work done is joule, JOULE, and you denote this, ये तो पूरा नाम है, इसको आप डिनोट करते हो कैपिटल J से। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ वर्क डन, you denote it by capital J. So if I'm asking define 1 joule or 1 Newton meter, can you define it now? Yes, ma'am. हाँ जी, बताओ कैसे डिफाइन करोगे? हाउ कैन यू डिफाइन 1 जूल और 1 न्यूटन मीटर? हम दोनों सेम है क्या? हाउ डू यू डिफाइन दिस? मैम F और S को 1 लेकर। हाँ जी, सो यू कैन मेंशन, आप इसकी डेफिनेशन में ये लिखोगे व्हेन द फोर्स इज टेकन एज 1 न्यूटन and the displacement of the object is 1 meter, then we say that 1 joule work is done, right? I'm repeating it. When we say that the force on any object is 1 newton, displacement by the object is 1 meter, then the work done is 1 joule. This is simple. अभी तक हमने जो किया है उसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबको समझ आ गया यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let us do one question. The question is, a force of 5 Newton is acting on any object. ठीक है, this is numerical, बहुत ही simple सा numerical है। The question is asking, it is given to you that the force acting on any object is 5 Newton
the object is displaced through 2 meter in the direction of the force. तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया है बाय 2 मीटर. If the force acting on object through all the displacement, then what is the work done? बताओ इस केस में वर्क डन कितना होगा? 10 न्यूटन मीटर. मैम 10 Nm. कोई भी बोलो. 10 इस mm. केस में your work done will be 10 mm. Very 10 good. joule. Force into displacement, which is 5 into 2. Yes, I have just explained you. Please mention joule because this is the known unit. Newton meter आपकी formula से आई है. That is also correct. गलत वो भी नहीं है. But you should try to follow this one. 1 joule. So the work done in this case is 10 joule. ठीक है, ये आपने बहुत ही अच्छे से कर लिया. First question. There is another question given to you in the in text. In text में आपको एक और question given है. A force of 7 Newton act on an object and the displacement is 8 meter. Force is 7 Newton and the displacement is 8 meter. What is the work done in this case? 56 joule. 56 joule. 56. Very good. Answer is 56 joule. ठीक है, easy. ये question तो सबको समझ आ गया होगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we are going to study that when do we say that work done is positive, negative और zero. देखो ऐसा भी होता है कि वर्क डन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और zero. Please remember, work done itself is not a vector quantity. क्योंकि एनर्जी, वर्क डन और एनर्जी दोनों सेम ही चीजें मानी जाती हैं. वर्क डन is not itself a vector quantity. Work done is a scalar quantity. इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है. लेकिन ये जो डायरेक्शन इसकी आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव आएगी, ये आएगी बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला. फॉर्मूले से यू कैन काउंट इट. नाउ लेट अस सी व्हेन डू वी से दैट वर्क डन इज पॉजिटिव. फर्स्ट केस, दिस इज योर ऑब्जेक्ट. ठीक है, you have applied force. This is the displacement and the object is here after the displacement. ठीक है, यहीं पर displacement भी हुई है. In this case you can see, इस केस में आप क्या देख सकते हो, that force is in this direction. Distance, displacement is also in the same direction. दोनों same ही direction में है. So in this case your work done is positive. So from here you can say when both the force and the displacement they are in the same direction, then work done is positive. So when F and S are in same direction, it is not necessary कि ये direction यही हो, कोई भी direction हो सकती है, upward, downward, left, right, any direction, but both of them should be in the same way. I'm giving you one example. For example, you have thrown an object. आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया है. Is it positive or negative work done? Negative. Ma'am, positive. Positive. Why? Ma'am, क्योंकि मैम दोनों एक ही Because you have डायरेक्शन. applied force. हाँ जी, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ ही हुआ है, इस वजह से वो आपका हो गया पॉजिटिव. क्या ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा? Is it always positive? मैम इस केस में क्योंकि तो ये ऑब्जेक्ट तो हमेशा आपने एक बार फोर्स, इस केस में हमेशा रहेगा. लेकिन आप इसको अगर इसको सेकेंडरी थॉट से देखो तो आपने एक बार फोर्स अप्लाई कर दिया यहाँ पर. ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ तक गया, तब तक तो ठीक था, तब तक तो दोनों सेम है, फोर्स भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है. लेकिन अपने आप एक सर्टेन डिस्टेंस पर जाने के बाद इट विल कम इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. लेकिन आपने तो यहाँ पर कोई फोर्स लगाया ही नहीं है. ठीक है, एक सर्टेन डायरेक्शन तक, एक सर्टेन हाइट तक जाने के बाद वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली नीचे तो आएगा, लेकिन आपने फोर्स कहाँ लगाया था? ऊपर. अब आप देख सकते हो दोनों की डायरेक्शन तो ऑपोजिट हो गई.
मैम ग्रेविटेशनल समझ फोर्स। आ रही है ये वाली बात जो मैंने अभी बताई है? यस, इस केस में क्या हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका पॉजिटिव है। आप ये कह सकते हो कि ग्रेविटी ने इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, और क्योंकि ग्रेविटी नीचे है, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपका पॉजिटिव है। लेकिन आपके ने जो फोर्स लगाया था, द फोर्स विच वाज एक्टेड बाय यू, दैट इज नॉट पॉजिटिव। ठीक है, इस चीज को फिर से समझ लो कि द इनिशियली when you applied force and the object was moving in the upward direction, सिर्फ यहाँ तक the force was positive. But as soon as the object has reached to the maximum height, it will come in the downward direction. Now, since you have applied force in the upward, but object is coming in the downward direction. So in these two cases, you can say that object is actually flowing or coming according to the like opposite to the direction of the force. So that is why your work done is negative. Work done आपका negative हो जाएगा. Work done by you. Please remember, this is the work done by you. This is the work done by the earth. ये अर्थ ने वर्क डन किया है, क्योंकि ये फोर्स अर्थ ने लगाया है. दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऑब्जेक्ट इज कमिंग टुवर्ड्स अर्थ. So the work done by earth is positive, but the work done by you is negative in this case. ये केस समझ आया? Which I have explained. Is it clear? यस No, मैम। ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, इसको ध्यान से सुना. This is your object, this is the force, this is the displacement. यहाँ तक the object is in positive work done. This is work done by you. ठीक है, I am writing by for you. So now it will reach to a certain height. In the next way it will come in the downward direction. लेकिन आपका लगाया हुआ फोर्स तो यही था, क्योंकि नीचे आने के लिए तो आपने कोई फोर्स नहीं लगाया. Now in this case you can say this is your force, this displacement is in opposite direction, so this is your negative work done. In this case work done by you is negative. लेकिन यहाँ पर आपने तो इस तरह फोर्स लगाया था, ये ऑब्जेक्ट नीचे क्यों आया? Because of the gravitational force. So this is the gravitational force, this is the displacement of the object. इस केस में वर्क डन आपका पॉजिटिव है for earth only. ठीक है, तो आप ये कह सकते हो वर्क डन बाय अर्थ इज पॉजिटिव. ये आपके 3 केसेस हो गए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा जगह आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने तो पॉजिटिव किया है वर्क डन, क्योंकि हमारे हिसाब से तो चीज़ें सही चल रही है, फिर वो अर्थ में कैसे नेगेटिव हो गई? वो इसलिए क्योंकि अर्थ का फोर्स भी तो है अपना, अर्थ का भी एक ग्रेविटेशनल पुल है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है. जहाँ पर आपका फोर्स जिस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं. लाइक दिस इज द ओनली क्रूशियल पॉइंट जिससे आप कह सकते हो कि वर्क डन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव. ठीक है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लेना, समझ लेना. दूसरा केस हम पढ़ लेते हैं कि ये था वर्क डन आपका पॉजिटिव कब हुआ. यू मस्ट हैव सीन, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. पहले जब आप थोड़े छोटे थे तो एक खिलौना आता था, एक कार आती थी, जिसको आप पीछे की तरफ ऐसे स्क्रॉल करते थे, फिर वो आगे की तरफ मूव करने लग जाती थी. हैव यू सीन दैट? Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. Yes. एक छोटे छोटे खिलौने आते थे पहले, अभी भी आते होंगे, आई एम नॉट क्वाइट श्योर. तो उसमें क्या होता था कि देयर इज अ स्मॉल कार, इफ यू आर पुशिंग इट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, आप पीछे की तरफ उसे लेके जा रहे हो और फिर वो आगे की तरफ चलने लग जाती है. तो इस केस में हुआ क्या है, इफ यू केयरफुली सी, assume this is your car, you have given force in this direction. ठीक है, आपने उसे पीछे की तरफ फोर्स किया है, लेकिन हुआ क्या, द ऑब्जेक्ट मूव्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. समझ आ रहा है ये वाला केस? What you have done, you have pushed it in the backward direction, but the object is moving in the opposite direction, forward direction. So in this case, you will see that force and displacement are in opposite direction. So आप ये कह सकते हो कि या तो फोर्स आपका पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, या फिर फोर्स नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों में से एक तो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है. सो इस केस में जो आपका वर्क डन हो जाएगा दैट विल बी नेगेटिव.
and this is possible when F and S are in opposite direction. Is it clear to everyone? yes ma'am. ठीक है. थर्ड केस व्हेन वर्क डन इज जीरो, ये कब होता है? इसके लिए आप एक छोटी सी चीज याद रख लो कि जब भी आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाए, जैसे ये तो सेम डायरेक्शन है, सेम या ऑपोजिट, लेकिन है तो स्ट्रेट